A very good morning, dear student. Welcome back in today's science class. And in today's class, we are going to discuss about the important steps or some important methods which are taken by the government or which are taken by the NGOs for water, for the protection or conservation of wildlife and forest. So, as you know that once again, I remember you. We are go through the water, some important points that we discussed in the previous class. So there we discuss about the biodiversity. Biodiversity means the varieties of plants and animals, or you can say the varieties in biological forms or in the form of plants and animal is called what biodiversity. Then we discuss about some important terms or terminology, that is species, then ecosystem, then we discuss wildlife, flora and fauna, and endemic species and conservation of conservation. So that we also discuss some significance or some benefits or importance of conserving water, the biodiversity. So as you everybody know that we all knows that these plants or animals are the water, the supportive part of our life, or basic, you can say, the fundamental play the fundamental or supportive role in our life. That's why we need to protect plants and animals. Then we also discussed in that previous class about the reason of for the loss of biodiversity, means what are the main causes for water the loss of biodiversity. In that we discussed the first, that is population, then urbanization, you can say that overgrazing of animals, illegal killing or hunting or you can say the poaching of animals and the plants for water, for selling in the international market and earning money. So that is also a reason for water, the loss of biodiversity. And this next one is a pollution, because due to the excess use of this fossil fuels, it is a man cause for water, the acid rain, and the acid rain have the harmful effects on this biological form or plants and animals. So now without any delay we start the today's topic, and today's we are going to discuss first the conservation of forest and wildlife, means how we can conserve or how we can protect or how we can save animals and plants, or you can say the forest or wildlife, because you know that these are the basic part or fundamental supportive role, it plays the fundamental or supportive role in our life. So we need to protect them or we use wisely. So for this for protection and for conservation of forest and wildlife, the main international level agency work in this field, that is called IUCN. IUCN means what? This IUCN means the International Union of Conservation of Nature and Natural Resources. IUCN. It means ओके. सो दिस इज द इंटरनेशनल एजेंसी. ये एक वर्ल्ड लेवल पे काम करने वाली इंटरनेशनल एजेंसी है, विच इज वर्क इन द फील्ड ऑफ दिस कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड प्लांट और वाइल्ड लाइफ. ये एक इंटरनेशनल एजेंसी है जो प्लांट या एनिमल्स को उनको प्रोटेक्ट करने या उसको कंजर्व करने के लिए काम करती है. ठीक है. सो द फुल फॉर्म ऑफ IUCN मीन्स द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. So now this in today's this IUCN it is changed into what? It is changed into WCU. WCU means World Conservation Union.
पहले जो है ना इसको IUCN कहा जाता था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन उसी को चेंज करके, उसी के नाम को चेंज करके क्या बना, WCU यानी वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, जो क्या करता है प्लांट्स और एनिमल को कंजर्व करता है. सो दिस IUCN इज डिवाइडेड दिस होल वाइल्ड लाइफ और प्लांट इन different 9 categories. So we discuss the one by one this all the categories. So IUCN categorize the species into the 9 categories on the basis of their size, population, rate of declining population and their geographical distribution. Means किस तरह से उनका जो नंबर है डे बाय डे रिड्यूस हो रहा है, डिक्लाइन कर रहा है, कम हो रहा है, उनके पॉपुलेशन, उसके जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर, मीन्स ये कौन से क्लाइमेटिक एरिया में जो है वो पाए जाते हैं, या उनकी पॉपुलेशन की साइज़ क्या है, उनके नंबर कितने हैं, उनकी पॉपुलेशन कितनी की है. तो इन तीनों के बेस पर जो है IUCN ने पूरे वर्ल्ड में जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स है उनको क्या किया है, उनको कैटेगराइज किया है ऑन 9 कैटेगरीज. सो दैट 9 कैटेगरीज वी आर डिस्कस वन बाय वन. दिस IUCN what categorize the species into 9 groups. Okay, in 9 categories. So first category, that is a three-tailed species. Second, endangered. Species. Then this third, vulnerable. Species. This fourth one, rare species. Then fifth one, is extinct species. Then sixth, so here we discuss about this 5 classes. IUCN ने इसको ना 9 क्लास में डिवाइड, मीन्स 9 कैटेगरीज में डिवाइड किया, लेकिन हम यहाँ पे अपने कोर्स में, अपने सिलेबस में अपने को 5 स्पीसीज के बारे में ही पढ़ना है. मीन्स 5 कैटेगरीज, जो फर्स्ट 5 कैटेगरीज है दैट वी डिस्कस इन आवर सिलेबस. सो वी डिस्कस अबाउट फर्स्ट the 310 species. What are, so out of that 9 we are discussing 5. First one, 310 species, endangered species, a vulnerable species, rare species and extinct species. So everybody, you see in your textbook, first we discuss about the 310 species. 310 species means that species which are nearer to the extinction, जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, या उनके नंबर जो है कंटिन्यूली क्या होता जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहे, कम होते जा रहे, वो काफ़ी एक तरह से उनको क्या है, ज़्यादा संकट में है या फिर ज़्यादा खतरा है, उनको थ्रेटेंड है, ओके, उनकी लाइफ के लिए. सो द सम स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव द ग्रेटली रिड्यूस इन नंबर इन देयर नेचुरल हैबिटेट. दे आर आइदर एट द एज ऑफ द एक्सटिंक्शन और लाइकली टू बी became extinct. Such species are called 310, means these are the nearer to the extinctions, विलुप्त होने की कगार पे है, क्योंकि उनके जो हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट है, फॉरेस्ट को है, वो क्लियर किया जा रहा है. सो इट्स नियरर टू वाटर, almost it is nearer to water, this extinction. So that type of species is considered in what categories, in a 310 categories. The threat might to be due to the habitat destructions. और किस कारण से, what are the reason for this threatening, means क्या रीज़न है जिसके कारण ये इतने फास्ट इनके नंबर रिड्यूस होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं. तो फर्स्ट वन, व्हाट, ड्यू टू द हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस, यानी उसके जो नेचुरल हैबिटेट है, द लिविंग प्लेस, और उसका शेल्टर जो है फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट की कटिंग के कारण या उस फॉरेस्ट को साफ करने के कारण के नंबर कम होता रहे. दूसरा, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड एक्सेसिव यूज ऑफ स्पेसीज. सेकेंड थिंग्स, फॉरेस्ट खत्म हो रहा है तो उसका फूड भी
खाना उसको ठीक नहीं मिल रहा है तो बेचारा भूख के कारण मर रहा है। और दूसरी जो है इनकी जो स्पीसीज़ है वो ज़्यादा जो है वो उसकी पोचिंग की जा रही है या हंटिंग की जा रही है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ द स्पीसीज़ मीन्स उस स्पीसीज़ को अपन बिना सोचे समझे ही ज़्यादा यूज़ में ले रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने सेल्फिश के लिए। तो वो उस कारण से क्या होता रहा है, वो रिड्यूस होती जा रही है। सेकेंड जो है वो इंडेंजर्ड। दिस आर द स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन इन द नियर फ्यूचर। मीन्स आने वाले आज से 5 या 10 साल आने वाले फ्यूचर में वो उनके भी नंबर क्या होंगे, कहीं ना कहीं काफ़ी कम हो जाएंगे। एक्सटिंग में तो आप डिस्टिंग ये जो ना थ्रीटेन में आप जैसे मांग सकते हो, लॉयन हो गए, टाइगर हो गया, एशियाटिक लॉयन जो हो गए, टाइगर बंगाल ना वो बंगाल टाइगर हो गए, ये सब क्या है, ये थ्रीटेन स्पीसीज जिनके नंबर्स काफ़ी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। या इंडेंजर्ड में भी उसको कर रखे आने वाले फ्यूचर में मीन्स इन 5 और 10 ईयर्स में उनके भी नंबर कम हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएगी, वो भी स्पीसीज जो है वो विलुप्त हो जाएगी, अर्थ से वो ख़त्म हो जाएगी, उनकी सब उनकी स्पीसीज ही जो है प्रजाति ख़त्म हो जाएगी। So these are the species which are in danger of extinctions in the near future. If the unfavorable factors for these are allowed to continue, they would become extinct. Example जो है वो just like this asiatic loin, इसमें जो है आपका example जो है वो asiatic loin, blue whale, Great Indian Bustard, Great Indian Bustard, ये जो तीनों स्पीसीज है, जैसे एशियाटिक लॉयन जो मोस्टली गिर फॉरेस्ट में होता है, ब्लू व्हेल है और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। तो ये जो है ये कैसी है, वो इंडेंजर्ड स्पीसीज है। मीन्स इसी टाइप से ना, इसी तरह से जिस तरह से अभी जो इनका नंबर कम होता जा रहा है, इसी तरह से इनके नंबर कम हो गए तो आने वाले फ्यूचर में मीन्स 5 और 6 ईयर के बाद इनके भी ये भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, बिल्कुल विलुप्त हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। Now next the vulnerable species. Vulnerable species means these are the species which are likely to become the endangered in the presence of causative factor. Presence of causative factors. यानी these are the species which are likely to become endangered. जो क्या है खतरे में है, उनके किस कारण से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स, यानी किसी कारण से उनको ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, तो आने वाले टाइम में भी उनकी भी जो नंबर है वो कम हो जाएगी। तो उसके लिए जो एग्जांपल है जस्ट लाइक द ब्लैक बक, गोल्डन लंगूर, चिंकारा, ये सब जो है वो क्या है, ये वल्नरेबल स्पीसीज है। दिस ऑल आर द वल्नरेबल स्पीसीज। ये सब किस कैटेगरी में है, वल्नरेबल कैटेगरी में। ओके, ब्लैक बक, गोल्डन लंगूर एंड चिंकारा डियर। चिंकारा डियर तो आप जोधपुर और फ्लोदी और ये जो जिसको बिश्नोई लोग प्रोटेक्ट करते हैं, इसी के केस में सलमान खान जो है वो फंस गए थे, जेल गए थे, तो वो चिंकारा डियर उसके शिकार के लिए। तो ये भी ये जो है स्पीसीज कैसी है, ये वल्नरेबल स्पीसीज है। देन रेयर स्पीसीज यानी काफ़ी कम मात्रा में पाई जाती है, वेरी इन रेयर केसेस। ओके, सो रेयर स्पीसीज विच आर एग्जिस्टिंग बट आर वेरी लो इन नंबर आर नोन एज दे आर एग्जिस्टिंग। दिस स्पीसीज आर एग्जिस्टिंग बट वेरी लो इन नंबर, काफ़ी कम संख्या में होगी, काफ़ी कम नंबर में होंगे, वो स्पीसीज कहलाती है रेयर स्पीसीज। ओके, फॉर एग्जाम्पल गोल्डन कैट, दिस रेयर स्पीसीज, इसके जो एग्जाम्पल्स है आपको, इसके जो एग्जाम्पल आप लिखेंगे, गोल्डन कैट, दिस गोल्डन कैट, देन मॉन्सिल, इंडियन पीडोहॉल, गैसलेस हिमालयन पॉर्क्यूपाइन्स, Himalayan porcupines, ये सब जो है वो क्या है, these are examples of this rare species.
Then extinct species means the species which completely disappear or wind up from what अर्थ सरफेस, यानी अर्थ सरफेस से, पृथ्वी से बिल्कुल वो खत्म हो गई है, उनकी प्रजाति जो है वो खत्म हो गई है, उसको कहते हैं अपन एक्सटिंक्ट स्पीसीज. सो देज आर द स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स विच हैव बीन लॉस्ट फॉर एवर, यानी उसको हमेशा के लिए हमने खो दिया है, उसको हमने हमेशा के लिए खो दिया है, वो ख़त्म हो गई है, उनकी स्पीसीज, उनकी नंबर जो है वो बिल्कुल नहीं है, जीरो है, मीन्स वो स्पीसीज ही खत्म हो गया, उनका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया. सो दैट टाइप ऑफ स्पीसीज इज कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पीसीज. एंड स्पीसीज वंस लॉस्ट कैन नॉट बी द रिट्राइव्ड. और आपको पता है कि एक बार कोई भी स्पीसीज यदि लॉस्ट हो जाए, खत्म हो जाती है, उसकी प्रजाति खत्म हो जाती है, तो उसको वापस रिट्राइव नहीं किया जा सकता, उसको वापस उत्पत्त नहीं किया जा सकता. ओके, इसके लिए जो है जस्ट एग्जांपल साइबेरियन क्रेन, एग्जांपल ऑफ दिस एक्सटिंक्ट स्पीसीज, साइबेरियन टाइगर, इंडियन चीता, गोल्डन ईगल, so these are some example of what extinct species जो खत्म हो गई है, अब इनको वापस रिट्राइव नहीं कर सकते ऊपर. ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, सर्पगंधा है और ब्रह्म कमल है. ठीक है, ब्रह्म कमल और अश्वगंधा, सॉरी सर्पगंधा एंड ब्रह्म कमल, ये कुछ प्लांट की स्पीसीज है जो क्या हो गई, खत्म हो गई है, इसको अपन वापस रिट्राइवल नहीं कर सकते. सो हियर देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ गिवन हियर. दिस आर वल्नरेबल स्पीसीज, ब्लैक बग, गोल्डन लंगूर, चिंकारा, देन द रेयर स्पीसीज गोल्डन कैट, मॉन्गसिल्स, इंडियन पार्ड, हॉर्नबिल. ओके, these all things, and these are the species of extinct species: Siberian tiger, Indian cheetahs, golden eagle, and this ब्रह्म कमल एंड सर्पगंधा. जो ये प्लांट्स है जो क्या हो गए, ये सब स्पीसीज बिल्कुल क्या हो गई, खत्म हो गई. अब इनको वापस आप रिट्राइव नहीं कर सकते, यानी इनकी जो है एग्जिस्टेंस ही अर्थ से खत्म हो गया. नाउ नेक्स्ट वी आर डिस्कस अबाउट द रेड डाटा बुक. This red data book is maintained by the IUCN or even say WCN. ठीक है, इसको कौन मेंटेन करता है? दिस रेड डाटा बुक इज मेंटेन बाय द IUCN. एंड रेड डाटा बुक मीन्स इट्स अ टाइप ऑफ बुक विच प्रोवाइड दिस कलेक्शन और यू कैन से द रिकॉर्ड अबाउट दिस ऑल द स्पीसीज. इन सभी स्पीसीज के बारे में जो हमें रिकॉर्ड मिलता है उसको अपन कहते हैं रेड डाटा बुक. So there are the sources of books maintained by the IUCN which contain a record of all the threatened species of plants and animals. जो भी threatened species है, कौन सी threatened species, ये जो threatened species है, इन species का जो record अपने को मिलता है किसमें, इस रेड डाटा बुक में. और इस रेड डाटा बुक को जो मेंटेन कौन करता है, इट इज मेंटेन बाय, इट इज मेंटेन बाय IUCN. Okay, and around the 3,000 animals and 20,000 plants are recorded in this book. और इस बुक में अभी तक जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स and this 20,000. मीन्स इस रेड डाटा बुक में अभी तक जो थ्रेटेंड स्पीसीज जो थी उसमें प्लांट की जो है 20,000 स्पीसीज मेंशन है कि ये सब स्पीसीज, इतनी सारी प्रजातियां पौधे की जो है वो प्लांट की जो क्या है वो थ्रेटेंड लेवल पे है, जिनका अस्तित्व खतरे में है, जो कभी भी खत्म हो सकती है. और एनिमल्स के ऑलमोस्ट 3,000 स्पीसीज, यानी 3,000 प्रजातियां जो है वो एनिमल्स की, दैट इज नियर टू द this threatened or near to the extinctions in coming days, or 20,000 species of plant. So this red data book means it is provide, it's a source book which is maintained by the IUCN, and it provide what the number of species of threatened species, which provide the number of threatened species or which provide the threatened species of plants and animals. So almost in a
it in this red data book, the 20,000 species of plant are mentioned that nearer to the threatened or extinctions, and almost 3,000 species of animal mentioned in a red data book that is in a threatened condition. Okay. Now next, the steps of conservation means how we can conserve these plants and animals. The steps of conservation. So in a step of conservation, first things what the spreading the awareness about this importance of plants and animals. सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो टॉप बात है कि आपको लोगों को ना इंस्पायर करना पड़ेगा या प्रेरित करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर लाइफ, हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में इनका क्या मूल्य है, इनका क्या योगदान है, इन पौधों का और इन एनिमल्स का हमारे लाइफ में क्या योगदान है। हम लोग तो समझते हैं कि सिर्फ हम तो एनिमल्स जो है ये हमारे लाइफ के में किसी काम के नहीं, तो इनको मारते जाओ या फिर पेड़ पौधे को काटते जाओ, तो ऐसा नहीं है। ये हमारे लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लाइफ के एक आप मान सकते हो अभिन्न भाग है जो हमसे भिन्न नहीं हो सकता, अलग नहीं हो सकता है, महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे लाइफ के। सो फर्स्ट द अवेयरनेस शुड बी द स्प्रेड अमंग द पीपल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड इट्स कंजर्वेशन। यू शुड स्प्रेड एंड व्हेन वी डू दिस थिंग्स, व्हेन वी आर गेटिंग द नॉलेज, जब हम पढ़ेंगे, उनके इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, तभी हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है ना, ये हमारे लाइफ में इस तरह से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, तो इनको मारना बंद कीजिए, पेड़ों को काटना बंद कीजिए। पेड़ हमें हवा देते हैं, पेड़ हमें फल फ्रूट्स देते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ वी आर गेटिंग फ्रॉम द वाटर प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो हमें लोगों को प्रेरित करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा, इसके इम्पोर्टेंस को बताना पड़ेगा, तभी ये हम कर सकते हैं, इनको कंजर्व कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, द स्पेशल एक्ट्स एंड लॉज शुड बी द इन्फोर्स प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ। एंड सेकेंड थिंग इज फॉर व्हाट द गवर्नमेंट को नए नए लॉज लाने पड़ेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन एक्ट बनाने पड़ेंगे। टाइगर एक्ट भी बना था, जैसे एलिफेंट पे भी एक्ट बना था, सेव द टाइगर सेव द लाइफ, लाइक दैट, है ना। तो बहुत सारे सौरभ गांगुली की और ऐड आती थी ना, सेव द टाइगर। ओके, सो ऐसे ऐसे मीन्स गवर्नमेंट को क्या है ना, कुछ लॉज बनाने पड़ेंगे, रूल्स बनाने पड़ेंगे, कुछ एक्ट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और सिर्फ बनाना ही काम नहीं है, इट्स नॉट अप टू दैट कि बात है कि सिर्फ बना के कागज़ों में ना हो गया, बस बना दिया हमने, नियम बना दिया, नहीं, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो भी कराना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट भी कराना पड़ेगा, लोगों से उसकी पालना करवानी पड़ेगी। यदि कोई ऐसा करता है, पेड़ पौधे को काटता है या जानवर को मारता है, तो उसको स्ट्रिक्टली सज़ा मिलनी चाहिए, तभी जो है वो हम कुछ कर पाएंगे। डिफॉरेस्टेशन एंड हंटिंग शुड बी द स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, मीन्स डिफॉरेस्टेशन एंड हंटिंग शुड बी, जो इलीगल किलिंग जो हो रही है एनिमल्स की, पोचिंग्स जो हो रही है, उसको बिल्कुल बैन करना चाहिए। बिल्कुल बैन है वैसे भी कि आपको यदि कोई शिकार करता हुआ मिल जाता है। अब बहुत सारे लोग जो अपने ना मनोरंजन एंटरटेनमेंट के लिए ना शिकार पे, हंटिंग पे निकल जाते हैं, तो ये सब बिल्कुल क्या है, दिस इलीगल थिंग्स, ये गैर कानूनी है, इसमें आपको सज़ा भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सब करवाना चाहिए, और ये तब गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली फॉलो करेगी जब कोई रूल्स बनाएगी और फिर लोगों इसको इन्फोर्स में लाएगी, इम्प्लीमेंट करेगी। स्पेशल प्रोटेक्टेड एरिया शुड बी द डेवलप्ड टू प्रोटेक्ट ऑल टाइप्स ऑफ द वाइल्ड लाइफ, यानी स्पेशल, जस्ट लाइक यू कैन सी दिस द लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर है ना, जवाई डैम, जवाई लेपर्ड कंजर्वेशन एरिया बनाया, उस तरह से कंजर्वेशन या नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व इस टाइप से हमें बनाने पड़ेंगे उनके लिए। दैट एरिया ओनली प्रोटेक्टेड फॉर वाटर प्लांट्स एंड एनिमल्स, nobody can enter in that area, and nobody human activity will be that interfere in that area, so that area only protected for the animals and the plant। so इस तरह से कुछ हमें protected areas बनाने पड़ेंगे। प्लांट एंड एनिमल शुड बी अलाउड टू द लिव फ्रीली इन देयर नेचुरल हैबिटेट, ताकि उसमें वो प्लांट और एनिमल अपने नेचुरली फ्री प्राकृतिक रूप से वो उसमें भ्रमण कर सके, घूम सके, अपना रिप्रोडक्शन कर सके और उनके नंबर्स बढ़ सके और इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। ओके, नाउ नेक्स्ट द प्रोटेक्टेड एरियाज की क्या है, कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज है। So protected areas, first this is the biosphere, then this national park, bird sanctuaries, or you can say the wild sanctuaries,
सो इन लास्ट पॉइंट फॉर दिस स्टेप ऑफ कंजर्वेशन, उसमें हमने ना लास्ट पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि हमें क्या कुछ ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज बनाना चाहिए जो सिर्फ प्लांट्स और एनिमल के लिए ही हो, यानी उसमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं हो. ओके, सो उसके लिए हम क्या बना सकते हैं? सो some the protected areas. In that protected area first, that is what the biosphere. बायोस्फीयर मीन्स काफ़ी बड़ा एरिया होता है जिसमें एनिमल्स और प्लांट को फ्रीली उनको रिप्रोडक्शन और फ्रीली उनको छोड़ दिया जाता है, तो वो अपने नेचुरल हैबिटेट में सर्वाइव कर सकते हैं. मीन्स देर आर द टोटली कम्प्लीटली वाटर द प्रोहिबिटेड टू इंटरफेयर फ्रॉम द आउटसाइड. बाहर से कोई भी इंसान, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी उस पार्ट में, उस एरिया में नहीं हो सकती. हाँ, तो बहुत सारे ऐसे नेशनल पार्क है. फॉर एग्जाम्पल नेशनल पार्क, वी आर डिस्कस सम नेशनल पार्क ऑफ इंडिया. The first one, this is Jim Corbett National Park. This is Jim Corbett National Park. This is situated in where? In the state of Uttarakhand. Second, Kanha National Park. This Kanha National Park is situated in what? MP, Madhya Pradesh. Where it is situated? That is located in MP, Madhya Pradesh. Kanha National Park. Satpura or this Palamu National Park. Palamu National Park, it is in Jharkhand. उसके और भी है, बहुत सारे हैं. तोडाबा नेशनल पार्क. दिस तोडाबा नेशनल पार्क इज इन महाराष्ट्र. तोडाबा. ओके, तोडाबा. दिस तोडाबा नेशनल पार्क, it is located or situated in Maharashtra. Where it is situated? This is in Maharashtra. And this Simlipal National Park. Simlipal National Park, it is in Odisha. And some important this sanctuaries of India is also given here. So everybody, you write down this table in your notebook at page number A90. Some Indian National Park or some important sanctuaries of India. Bharatpur sanctuaries, Bharatpur Bird Sanctuary, Dr. Salim Ali Prevent Center for Birds, that is in where? Rajasthan, Bharatpur में. ठीक है. काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है. दैट इज फेमस फॉर वाटर वन हॉर्न राइनोसोर्स. एक सींग वाले गैंडे के लिए जो फेमस है वो है आपका काजीरंगा नेशनल दिस सेंचुरी. काजीरंगा नेशनल सेंचुरीज. और ये काजीरंगा जो नेशनल सेंचुरीज जो है वो है आसाम में. वेर इट इज़ आसाम में. और ये किसके लिए है? एक सींग वाले गैंडे वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं. सुल्तानपुर हरियाणा में है. बांदीपुर कर्नाटका में. और पेरियार सेंचुरी जो है वो केरला में है. ठीक है. वाइल्ड सेंचुरीज. वाइल्ड सेंचुरी मीन्स दीज आर द एरियाज विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशंस टू द वाइल्ड एनिमल्स. पोचिंग्स और हंटिंग कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन दिस एरिया. वाइल्ड सेंचुरी में क्या होता है? ये एक एरिया है जो कंजर्वेशन ऑफ फॉर प्लांट एंड एनिमल्स, और इसमें किसी भी टाइप की कोई भी शिकार मीन्स हंटिंग या पोचिंग नहीं होती है. इलीगल किलिंग जो है बिल्कुल क्या है? इट्स कम्प्लीटली स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. ओके. They are used to increase the population of animals which are on the verge of extinctions. और ये किस लिए है? This wild sanctuary is for water, जो काफ़ी एक्सटिंक्शन के नियर पे है, जो बिल्कुल ना विलुप्त होने की कगार पे है, उनके नंबर को वापस से क्या करना? इंक्रीज करना. इसलिए इनको नेचुरली कंडीशन प्रोवाइड की जाती है. ठीक है. नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व वॉज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व एस्टेब्लिश इन इंडिया. हमारे इंडिया का जो सबसे फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व था वो था नीलगिरी. सबसे फर्स्ट नेशनल पार्क जो था वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क फर्स्ट नेशनल पार्क established in India, and first biosphere reserve is what this Nilgiri biosphere reserve. ठीक है.
Then next, some organization means some NGOs is also work in the field of water for the conservation of plants and animals, like WWF. This is the WWF, or you can say the IBWL, or one more. This is MAB. ये सब क्या है? दिस आर सम एनजीओज. ये कुछ एनजीओज है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्या करता है प्लांट्स और एनिमल्स को बचाने के लिए या उनके कंजर्वेशन के फील्ड में काम करते हैं. WWF मीन्स वर्ल्ड वाइड फंड फॉर द नेचर, IBWL इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, एंड MAB मीन्स मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, और IUCN तो जो ये है ही आपको पता है, दैट इज़ इंटरनेशनल लेवल का एजेंसी है जो पूरे वर्ल्ड के प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है. नाउ अदर देन दिस वन, सम फॉरेस्ट एक्ट इज ऑल्सो फॉर्म. गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के द्वारा कुछ फॉरेस्ट एक्ट भी बनाए गए, कानून बनाए गए हैं जंगल से संबंधित. दैट इज द वाइल्ड एक्ट वाज पास्ड इन 1972. एक एक्ट बना था जैसे इन 1972, ठीक है. वाइल्ड एक्ट, उसको कहते हैं वाइल्ड लाइफ एक्ट. वाइल्ड लाइफ एक्ट. This wildlife act is passed in 1972 to protect or to conserve for the animals and plant. And the national forest policy, national forest policy, national forest policy, that is adopted in this 1988. तो ये सब जितने भी पॉलिसीज जो है, जितने भी मेथड्स है, ये सब किसके लिए है? उसका सब एक ही मकसद है, एक ही पर्पज़ है कि प्लांट्स और एनिमल्स को बचाना. और बचाना क्यों है? क्योंकि ये हमारे लाइफ के काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है. यानी हमारा पूरा जो है इकोलॉजिकल बैलेंस जो बना हुआ है, पर्यावरण जो संतुलन बनाया हुआ है, वो पर्यावरण संतुलन इन्हीं के कारण बन सकता है. बिकॉज दीज आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फूड वेब एंड फूड चेन. दैट्स वाई वी नीड टू प्रोटेक्ट देम वाइजली. ओके, इसीलिए हमें ज़रूरी है कि इनको बचा के रखना है. सो आपको क्या करना है? Everybody you go through this map. Here the different नेशनल पार्क, वाइल्ड सेंचुरीज एंड बर्ड सेंचुरीज दी हुई है, जो कौन कौन के एनिमल्स के लिए, कौन से स्टेट में कौन सी है, ठीक है, और कौन से एनिमल्स के लिए है, कौन से बर्ड्स के लिए है, वो आपको पता चल जाएगा इसमें से देखकर. जैसे राजस्थान में आप देख सकते हो, डेजर्ट में है अकल फोसल पार्क, अकल फोसल पार्क दैट इज इन जैसलमेर. माउंट आबू में जो है, माउंट आबू में सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है. भरतपुर में है रणथंभौर सरिस्का पार्क नेशनल, है ना, रणथंभौर है, सरिस्का पार्क भी है, तो रणथंभौर भी है, ये सब, ठीक है. नाउ देन सो इस तरह से एक और भी प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर.